हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस ऑनलाइन। आज मैं लेके आया हूँ और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। These questions are also very important for the NEET and NET 2020, and some of the questions have already been asked in the NEET. If you like my video, do subscribe and press the bell icon so that you will remain updated with the bio classes online. Now let us start. The first question is, plasma membrane helps in transportation of only water in and out of cell, protein synthesis, osmoregulation, nucleic acid. पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करता है। हमें पता है कि हर एक सेल के बाहर एक थिन फिल्म लाइक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। The main function of this plasma membrane is to regulate the flow of materials into and out of the cell. And this function of the plasma membrane is called as the osmoregulation. So the answer of this question is osmoregulation. Next question. Cell recognition and adhesion occurs due to biochemicals of cell membrane named. How the cell recognition and adhesion occur? What are the cell membrane biochemicals which are responsible for the cell recognition and adhesion? The options are proteins, and lipids, glycoproteins and glycolipids. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है, सेल मेम्ब्रेन में तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, लाइपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो लाइपिड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिपिड bilayer, while as the proteins are of two types. Those which are on the periphery of the lipid bilayer are called as the extrinsic proteins or peripheral proteins, and those which are present within this lipid bilayer are called as the intrinsic or integral proteins. And the carbohydrates which are present in the cell membrane are mainly in the form of either the glycoproteins and glycolipids. Either these carbohydrates are attached with the proteins and form the glycoproteins, or with the lipids to form the glycolipids. So these are the glycoproteins and glycolipids which help in the cell recognition and adhesion. So the right answer is glycoproteins and glycolipids. Next question. Plasma membrane is made of, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, प्रोटीन्स, lipids and carbohydrates. The most acceptable model about the plasma membrane is the fluid mosaic model, which was given by H.J. Singer and G. Nicholson in 1972. And according to this model, the plasma membrane contains a lipid bilayer, two types of the proteins, that is the intrinsic proteins and extrinsic proteins, and carbohydrates. And carbohydrates are mainly present in the form of glycoproteins and glycolipids. And some of the intrinsic proteins are run throughout the lipid bilayer, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं टनल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, जिसमें प्रोटीन्स, लाइपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. The fluid mosaic model explains which aspect of the cell membrane. अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया गया है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दिया गया है, वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया है।
सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है लिपिड बाइलेयर से, प्रोटीन से, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक एंड सम ऑफ द इंट्रेंसिक प्रोटीन्स रन थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर, जिनको उसने नाम दिया टनल प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और साथ साथ में उन्होंने बताया कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट जो उन्होंने दिया है सिंगर एंड निकोलसन। सो हम कह सकते हैं अभी की स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट तो दे दिया है, लेकिन साथ साथ में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये भी एक्सप्लेन कर देता है कि जो ये टनल प्रोटीन्स होते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो ये हेल्प करते हैं passage of water and water soluble substances। तो दिस इज़ द फंक्शनल आस्पेक्ट। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल परमिएसेस। जो परमिएसेस एंजाइम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो फैसिलिटेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सबस्टेंस। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कैरियर्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सबस्टेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फंक्शनल आस्पेक्ट है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो both aspects have been explained by this model, fluid mosaic model, that is both the structural as the functional aspect of the plasma membrane. So the correct answer here is the C, both structural and functional aspect. Next question: which one of the following is not a constituent of the cell membrane? As we know, the glycolipids are present in the plasma membrane, so this is not the right answer. Phospholipids, the lipids, the main lipids present in the plasma membrane are the phospholipids, so ये भी आंसर नहीं है. Cholesterol is one of the type of a lipid, ये भी नहीं है इसका आंसर. तो proline is an amino acid which is not present in the plasma membrane, so the right answer is proline. Next question: the primary cell wall is mainly made up of, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है? लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी वॉल कहाँ पे होता है. इट इज़ द प्राइमरी सेल वॉल जो प्लांट सेल्स में होता है, विच इज़ फॉर्मड बाय द प्लांट सेल्स एंड इज़ प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडल लेमेला. पहले क्या होता है, जो अगर प्लाज्मा एक सेल में ले लूँ, यहाँ पे ये सेल में ले लूँ, यहाँ पे पहले एक वाल खड़ा हो जाता है सेंटर में, जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला. और इस मिडल लेमेला के अंदर इनर साइड में दोनों साइड्स में एक वॉल डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल. एंड दिस प्राइमरी सेल वॉल इज मेनली composed of or made up of the cellulose microfibrillus. cellulose microfibrillus से ये बना होता है. एंड इसमें एक और खासियत है, it is a thin elastic and it is able to extend, it is extensible, it can get extended towards the inner side. So the right answer to this question is that the primary cell wall in plants is made up of the cellulose. Next question: element necessary for the middle lamella is, जिसमें अभी बता रहा था कि जो ये मिडिल लेमेला होता है, इट इज़ ए थिन amorphous cementing layer between the two adjacent plant cells. दो प्लांट सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग amorphous लेयर होता है, जिसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं. ये मिडिल लेमेला इज जस्ट लाइक ए कॉमन ब्रिक वॉल बिटवीन द टू रूम्स. दो रूम्स के बीच में अगर जो कॉमन ब्रिक वॉल होता है जिस तरह होता है, उसी तरह ये मिडिल लेमेला भी दो सेल्स के बीच में होता है. यहाँ पे हमें बताया जाता है एलिमेंट कौन सा होता है जो नेसेसरी है फॉर द मिडिल लेमेला. हमें मिडिल लेमेला में मिडिल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स. कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स. हमें अब यहाँ पे एलिमेंट देखना है, क्या कैल्शियम इस ऑप्शंस में है या मैग्नीशियम ऑप्शंस में है. तो यहाँ पे हमें कैल्शियम ए ऑप्शन में ही है, तो दिस इज द राइट आंसर. जिंक तो नहीं है, पोटेशियम तो नहीं है, कॉपर तो नहीं है. नेक्स्ट, प्लाज्माडेस्माटा आर
अब यहाँ पे प्लाज्मा सेल वॉल के रिगार्डिंग एक और ऑब्जेक्टिव है प्लास्मोडेस्मेटा। प्लास्मोडेस्मेटा जो होते हैं दे आर the narrow pore carrying fine strands of cytoplasm between the which interlink the two adjacent plant cells। ये फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक होते हैं जो इंटरलिंक करते हैं दो एडजेसेंट सेल्स प्लांट्स को। तो इन प्लास्मोडेस्मेट्स का जो दूसरा नाम होता है प्लास्मोडेस्मा कनेक्शंस। सो दीज आर द कनेक्शंस बिटवीन द two adjacent plant cells. So these are not the locomotary structures, these are not the membranes connecting the nucleus with the plasma lemma, these are the connections between the two adjacent cells, that is the plant adjacent cells. So the C option is the right answer. Next question, what are desmosomes? Desmosomes जो होते हैं they are disc shaped structures जो एनिमल सेल्स में होते हैं, जो ये एक सर्कुलर डिस्क शेप्ड थिकनिंग्स होती है जो दो एनिमल सेल्स के मेम्ब्रेन्स के इनर साइड में होते हैं और ये एक्ट करते हैं जस्ट लाइक एज द स्पॉट वेल्ड्स। वेल्डिंग जैसी होती है ना, जो वेल्ड जब हम दो चीज़ों को करते हैं, दो आयरन रॉड्स को करते हैं, वो अटैच कर देते हैं उन दो रॉड्स को, जिस तरह एक वेल्ड करते हैं हम किसी दो आयरन सबस्टेंसेस को, इसी तरह ये डिस्मोसोम्स भी स्पॉट वेल्ड्स एक्ट करते हैं और की सेल्स को फर्मली टुगेदर में रख देते हैं। दे कीप द सेल्स फर्मली टुगेदर। सो वी कैन से द function of the desmosomes is the cell adherence or the attachment of the cells together. So तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बी में है सेल एडहेरेंस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria is usually highly convoluted, forming a series of infoldings known as। हमारे क्वेश्चन बता रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें हाईली कन्वोलेटेड इनफोल्डिंग्स होती है, उनको क्या कहते हैं? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन द एनिमल सेल्स, और ये ऑर्गेनली है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है जिसमें अपना डीएनए होता है। इट इज़ ये माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से इसके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। वी कैन से दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली। इसके बाद इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और इज परमेएबल टू द वेरियस काइंड्स ऑफ द सबस्टेंसेस, बिकॉज इसमें कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोरिन्स। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ अगर यहाँ पे हम ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाएं, अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई। क्या कहते हैं हम इनको? क्रिस्टाई। और दिस क्रिस्टाई help to increase the surface area so that the maximum function is carried out. Next, so the right answer here is the cristae. Next question is the mechanism of ATP formation both in chloroplasts and mitochondria is explained by। देखिए, दो ऑर्गेनलीज, एक ऑर्गेनली प्लांट्स में होती है, दूसरी ऑर्गेनली होती है एनिमल्स में। प्लांट्स में जो ऑर्गेनेल होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। एनिमल्स में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस एज वेल एज द डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। लेकिन कौन सा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से ये एटीपी फॉर्म कर रहे हैं these organelles, that is the chloroplast and the mitochondria? It was a Peter D. Mitchell in 1961 who proposed the one of the theory or one of the hypothesis जिसको हम कहते हैं कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताता है कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं
जो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन जैसे हमने अभी बताया कि वो इसमें इन कन्वुलेशंस होती है या इनफोल्डिंग्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टाई। तो यहाँ पे कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताता है कि जो ये वाली अंदर की जो साइट इनर मेम्ब्रेन से अंदर जो साइट होती स्पेस होती है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ से एच पॉजिटिव आयन्स यहाँ की तरफ जाएंगे, द स्पेस बिटवीन द टू आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो प्रोटॉन्स होते हैं, एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। मूव करते हैं प्रोटॉन्स दिस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इस दौरान क्या हो जाता है, तो प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगी इन द आउटर चैम्बर और द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जब वो वापस वो प्रोटॉन्स आते हैं उस दौरान जो प्रोटॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं दैट इज कैप्चर्ड टू फॉर्म द एटीपी। और एक बात यहाँ पे, जब प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगी और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगी, और उस वक्त एक ग्रेडियंट जनरेट होता है जिसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सो दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द पीटर मिचेल इन हिज by proposing a theory or a कीमियोस्मोटिक जिसको हम कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं या थ्योरी कहते हैं। तो द राइट आंसर इज कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल पोरेन्स आर लोकेटेड इन। जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर कंपार्टमेंट। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, वाइल एज द इनर मेम्ब्रेन हैज हैड इनफोल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं क्रिस्टाई। और इस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। उन चैनल्स को, जो प्रोटीन चैनल्स होती हैं जिसके थ्रू जिनकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन परमेएबल हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, उन चैनल्स को उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पोरेन्स, और वो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स ओकर ऑन। देखिए फिर से क्वेश्चन रिगार्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें कुछ टेनिस रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिन टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स को हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स, या इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और these F0 F1 particles or oxysomes, they are present on the inner membrane of the mitochondria and act as ATP synthase. These are the proteins which help in the ATP synthesis during the oxidative phosphorylation, and so they are present on the inner mitochondrial membrane. There are some 1 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power 4 to 1 into 10 raised to power 5 oxysomes or elementary particles or F0 F1 particles uh, uh, in a mitochondria. So the right answer to these oxysomes or F0 F1 particles or elementary particles
they are present on the inner mitochondrial membrane. So the right answer is C. Next question, middle lamella is composed mainly of. मिडिल लेमिला जो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि सेल वाल जो होता है प्लांट सेल्स का, तो पहला जो लेयर बनता है दैट इज जस्ट लाइक एज द कॉमन ब्रिक वॉल बिटवीन द टू एडजेसेंट रूम्स, उस वो बना हुआ होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो द राइट आंसर हियर इज द कैल्शियम पैक्टेट बिकॉज मैग्नीशियम तो नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए हमें पता है 3 ऑर्गेनलीज ऐसी होती हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरी क्लोरोप्लास्ट। एंड देयर आर सम ऑर्गेनलीज जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, सच एज राइबोसोम्स, सच एज सेंट्रियोल्स, सच एज दीज सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो लेकिन कुछ ऑर्गेनलीज ऐसी होती हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सच एज गोल्जी एपरेटस, सच एज लाइसोसोम्स, सच एज दीज वैक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ ओनली द लाइसोसोम। देखिए कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपको, अगर आपको याद भी नहीं होगा कि इसमें मेम्ब्रेन होगा, तो लेकिन यहाँ पे आपको अगर 3 ऑर्गेनलीज आपने याद रखी हैं इनमें डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, तो सिंगल मेम्ब्रेन तो आपको लाइसोसोम में ही होगा, जिसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनलीज विथ मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर। देखिए अभी जो मैं जिक्र कर रहा था कि एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो न्यूक्लियस में डबल होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, तो इसमें राइबोसोम हमने अटैच की, इसने दी ऑप्शन साथ में दी है, तो ये आंसर सही नहीं है। हमें बताया मेम्ब्रेन किस में है। लाइसोसोम में तो lysosome is a membrane bound organelle, Golgi apparatus is a single membrane bound organelle, mitochondria is a double membrane bound organelle। तो यहाँ पे आंसर दिस बी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम सी ऑप्शन की तरफ देखेंगे, न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन, लेकिन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्रोमोसोम्स में तो मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम्स में तो मेम्ब्रेन नहीं होता। तो डी ऑप्शन इज आल्सो नॉट द correct answer. So the right answer to this question is option B, that is lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. Subscribe and share. Thank you.